Management System, that is DBMS. The basic philosophy behind the efficient use of the desktop computer is to avoid or at least reduce the drudgery and the monotony of carrying out the task, which is either absolute routine or high representative of type of nature, handling and analysis of the large volume of the repetitive data fall in this category. Therefore, the desktop computer is ideally suited for such purpose and subject to the limitation imposed by its performance, versatility and speed. The database management system is the collection of interrelated large and the set of programs to access those data. It manages new large amount of data and supports efficient access to new large amount of data. For example, when you organize the information with the index card, you generally arrange it with some logical orders, such as the alphabetic name, data-wise, city-wise, and increasing order and amounts, etc. Also, the records meeting of a specific criteria may also be selected by setting filter conditions. For instance, you may view the record of those employees who are particular departments, say sales. All this much more is possible through the database management packages. Some popular database management system, DBMS and Fox Pro, SS, Oracle, etc. The database management system is the package that can handle and manage the bulk of the stored data. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? एक पैकेज होता है, एक जो कि हैंडल करता है बहुत सारे डेटा को स्टोर करने का एक क्या होता है, पैकेज होता है जिसमें बहुत सारा डेटा स्टोर हो सकता है. इसमें क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंट यूज़ करने के लिए और डेस्कटॉप कंप्यूटर को अच्छे से चलाने के लिए और उसकी जो बोरिंग काम, हार्ड और बोरिंग काम जो होता है, या बहुत सारा सेम चीज़ मोनोटोनी में होता है, मतलब सेम ही चीज़ जो बहुत ही बोरिंग हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनी. तो उसको क्या करता है, एब्सोल्यूट रूटीन को, हाईली रिप्रेजेंट जो टाइप के नेचर होते हैं उसे हैंडल करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हम यूज़ करते हैं, जो कि लार्ज वॉल्यूम में अवेलेबल होते हैं और बहुत सारा, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सारा डेटा जो होता है वो स्टोर हो सकता है इसमें. इसलिए इस पर्पज़ के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो वर्सिलिटी होती है, मतलब इसकी जो स्पीड होती है, जो इसकी ग्रैबिंग जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो करता है, इंटर रिलेशन होता है डाटा का और प्रोग्राम्स का, मतलब जो प्रोग्राम्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको डेटा से इंटरलिंक करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. और ये क्या करता है, जो बहुत सारा जो डेटा होता है हमारे पास उसको एसेस करता है और नए जो डेटा होते हैं उसको भी एसेस करता है. तो जब आप ऑर्गेनाइज करते हो किसी डेटा को, तो वो कैसे होता है, जैसे कि इंडेक्स कार्ड्स होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, और कुछ लॉजिकल ऑर्डर में, कुछ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम कुछ चेंज करते हैं, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ चीज़ लगाते हैं, या कुछ चीज़ रिकॉर्ड करते हैं. ये सारा चीज़ फ़िल्टर करना, ये कंडीशन करना, वो सब डेटाबेस मैनेजमेंट में हो जाता है. और इसके जो हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारे पास है, जैसे कि फॉक्स प्रो हो गया, MS एक्सेस जैसे देख रहा होगा, MS एक्सेस में भी हमने दिखाया था, तो वहाँ पर ये भी है, ओरेकल है, एटसेट्रा. ये इस तरह की सॉफ्टवेयर हैं. यहाँ पर उसकी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर दे रखी है, MS एक्सेस की यहाँ पर दे रखी है. उसके बाद आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज. What is still more exciting in the desktop publishing, DTP, using the computer, as the name suggests, you gets everything that you can achieve by typesetting method, indeed much more in the substantial shorter tune frame apart from the composing the text. Its layout, line drawing, charts, graphics can be easily be created and inclined in the main body of the text using the standard programs. Scanners are available for the black and white of the colored picture to be included in the final layout. The design and the layout of the complete look of general can be achieved without much trouble using the suitable DTP package. For example, this book has been written, corrected and edited using the standard text processing software. Then its layout composed by means of standard DTP package. Some DTP softwares are Corel Draw, Corel Paint, PageMaker, etc. Desktop publishing software handles page layout by combining the function of the traditional typesetter and the layout artist. डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज वो होता है जो कि डेस्कटॉप में आपको लेआउट जो होता है, या आप कुछ ड्राइंग, चार्ट, ग्राफ्स ये यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये यूज़ होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जो कि मोस्टली कलर्ड पिक्चर्स
होती हैं या किसी लेआउट होता है किसी, जैसे उसमें डिज़ाइन और उसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करने वाले पैकेज को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज कहते हैं। जैसे कि बुक किसी ने लिखी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और इस सॉफ्टवेयर में जो है वो भी अवेलेबल हो रहा है। सो इस सॉफ्टवेयर में जैसे कि इसके कोई एग्जांपल है, जैसे कि कोरल ड्रॉ जो हम यूज़ करते हैं, कोरल पेंट हो गया या पेज मेकर हो गया, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, ये सबके डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस के हैं। सो ये कोरल ड्रॉ का यहाँ पर दिखा रखा है। एडोब का पेज मेकर जो देख रखा होगा, इसमें भी ये है, कोई भी आर्टिस्टिक कोई भी काम करना है डेस्कटॉप, सो वो यहाँ पर हो जाता है। अब बात करते हैं ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, presentation application. So perhaps the most spectacular task performing by the computer involves the graphic animation packages. Apart from the capability of the drawing various types of charts, graphs and line diagrams and the text headlines and the banners in the number of attractive fonts, these packages are capable of producing live drawing with or without animation. Much of these computer graphics and animations that you see in your television can be produced by the computer. This skill has immensely improved the quality of the efficiency, educational, commercial and other audio-visual presentation, lecture, demonstration programs and mass communication in general. Ultimately, it is the limit of the human integrity which may restrict the application of the seemingly limitless graphical and admission capabilities of the computer. Representation graphics is another specific type of graphical software. These programs are used to create the professional outlook visual aids for the audience. The visual aids can be computer images, paper printouts, photostatic transparencies. The most popular graphics, multimedia and representation packages are CorelDRAW, Photoshop, MS PowerPoint, etc. So जो ग्राफिक, मल्टीमीडिया और रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशन होती है, ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि प्रोफेशनल लुक के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें बहुत सारे एड्स, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे ग्राफिक सॉफ्टवेयर इसमें अवेलेबल होते हैं। तो ये जो होते हैं प्रोफेशनल द्वारा यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अगर ग्राफिक्स हो गया, सो ये एक ऐसा पैकेज होता है जिसमें कि बहुत सारी ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, इसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसमें अगर चार्ट होते हैं तो बहुत डिफरेंट टाइप के चार्ट होंगे, ग्राफ्स होंगे, बहुत सारी तरीके के होंगे, इसमें डायग्राम्स, टेक्स्ट, लाइन, बैनर्स जो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं उनके लिए यूज़ होता है। सो ये मल्टीपल इसमें पैकेजेस आते हैं, अवेलेबल होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, हमारे जो ग्राफिक्स होते हैं, जो कंप्यूटर के ग्राफिक्स होते हैं, वो इसमें बहुत सारे तरीके के होते हैं। एनिमेशन करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, वो मल्टीमीडिया में आ जाते हैं। और इसमें ऑडियो विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी जो हमारा मल्टीमीडिया में आ जाता है। लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से किस में आ जाता है, मल्टीमीडिया में आ जाता है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, एप्लीकेशन होती है, इसमें बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स आ जाती हैं और बहुत ही अच्छी एनिमेशन कैपेबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, किस में, हमारे ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया और रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशन में। और इसमें क्या होता है, अलग अलग तरह के ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स इसमें डलते हैं, और ये जो होता है यूजुअली एक बहुत ही प्रोफेशनल लुक देता है, एक बहुत ही अच्छा दिखता है और ऑडियंस को बहुत ही प्रेजेंटेबल दिखता है। इसमें जो कंप्यूटर की इमेज होती है, जो पेपर प्रिंट आउट भी कर सकते हो, और ग्राफिक ट्रांसपेरेंसी भी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। और ये जो इस टाइप के जो ग्राफिक, मल्टीमीडिया और प्रेजेंटेशन पैकेजेस होते हैं, जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, MS पावर पॉइंट जो हमने बताया था, पावर पॉइंट जो होता है वो भी एक तरीके से बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन करने के लिए यूज़ होता है। सो वो भी एक सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप है, जहाँ पर आप अपनी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अदर फोटोज़ जो भी आप प्रिंट आउट कराते हो, तो वो फोटोशॉप का अलग एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। सो वो क्या हो गया, वो भी एक तरीके का ग्राफिक, मीडिया और रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है। जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है एडोब फोटोशॉप, तो ये एक बहुत ही फोटोशॉप है, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल जो है बहुत सारे ऐसे टूल्स रहते हैं जो कि एक किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में नहीं रहते हैं। तो ये एक बहुत ही अलग ही तरीके का ग्राफिक्स इंटरफेस होता है। ठीक है, यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए जैसे कि हमने देखा है कि हम स्पेसिफिक करते हैं पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत ही जो होता है एडवांस प्रोफेशनल टाइप का हमारे पास स्लाइड्स ये सारी अवेलेबल होती है। अब यूटिलिटीज़ की बात करते हैं। यूटिलिटीज़ आर दोज helpful program that ensures the smooth functioning of the computer. The utilities are meant to assist your computer. Some utilities help to backup data. Some help remove the data output files or recover the data that has been accidentally erased. Some make it easier to find the arrange the information you need, and some help you to avoid the virus attacks and clean the viruses, if any. In other words, the utility program performs the housekeeping function.
The utilities are those application programs that assist the computer by performing the housekeeping functions like backing up the disk or scanning the cleaning the virus etc. So utilities क्या होते हैं, एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को घर की सुरक्षा के लिए यूज़ होता है। जैसे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई चीज़ हमारी डेटा नहीं मिल रहा है, डेटा जो है हमारे नहीं मिल रहा है, तो उसे बैकअप करने के लिए, उसे वापस लाने के लिए उसको स्कैन करता है, और वहाँ अगर कोई कंप्यूटर में कोई वायरस है तो उसे डिटेक्ट करता है, उसे डिलीट करता है। तो ये सारे काम यूटिलिटीज़ के प्रोग्राम्स के द्वारा होते हैं। यूटिलिटीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है जो कि हमारे स्मूथ फंक्शनिंग, बहुत ही अच्छी तरीके से फंक्शन करने कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है। यूटिलिटीज़ जो होता है हमारे कंप्यूटर को असिस्ट करता है, हेल्प करता है, तो डेटा को वापस लाने के लिए और रिमूव करने के लिए, पुरानी फाइलों को हटाने के लिए, और पुराने डेटा जो कि हमारे को अभी यूज़ है उसको रिकवर वापस से लेकर आने के लिए, और जो भी है चीज़ें एक्सीडेंटली जो डिलीट हो जाती है उसको भी हम लेकर आ सकते हैं इसके थ्रू। ये बहुत ही हेल्प करता है हमें, हमारा जो भी अटैक करता है, जैसे कि वायरसेस जो हमारे कंप्यूटर को अटैक करते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए ये यूज़ होता है। और ये प्रोग्राम क्या है, एक तरीके से हाउसकीपिंग फंक्शन करता है, मतलब घर की एक तरीके से देख रेख है वो पूरी तरीके से इसमें यूटिलिटीज़ में देखी जाती है। Some important utilities are being discussed below. The text editor. This utility programs is used for creating edit text files using the program. Any text manner, generally in English like languages, can be typed and saved on the disk file. This file can be retrieved and anytime and can also be edited, corrected, etc. The text edited software programs special commands for text editing software support special commands to text editing. That is, you can insert, delete, find, replace characters, line and paragraphs. Backup utilities. These utility programs facilitates the backing up of disk. Backup means the duplicating the disk information so that the cases of any damage of the data loss that is backed up by the data and used. The file and folder and even drivers can be backed up using the facility. The compression utility. The utility of the program facilitates the compression of the file. The large files can be compressed so that they can take less storage area when needed. These compressed file can be explored back to their original form. By compression, the files are stored in a specific format that takes less space. However, these compressed files cannot be directly used. They need to be exported back to their original form before they can be worked upon. The disk fragmentator. The utility program attempts to minimize the fragmentation of your disk. A file is fragmented when it becomes too large for your computer to store a single location on the disk. When this happens, your computer splits up the file up to the stored in the pieces, and you can also use fragmented files, but it takes your computer longer to access them. The disk defragmenter speeds and the disk access to rearrange the file and free space on your computer so that the file are stored in the configuration units and the free space in the consolidation in one configuration block. So हमारा जो इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होता है, तो टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर एक MS वर्ड का टेक्स्ट एडिटर है, सो ये क्या करता है, कोई भी हमें टेक्स्ट को अगर हमें एडिट करना होता है वो हेल्प करता है, इंसर्ट करना है, कुछ चीज़ डिलीट करनी है, कुछ फाइंड करना है, कुछ रिप्लेस करना है, कोई कैरेक्टर डालना है, कोई लाइन डालनी है, कोई पैराग्राफ डालना है, तो वो टेक्स्ट एडिटर द्वारा किया जाता है। उसके बाद में आता है बैकअप यूटिलिटी। तो बैकअप यूटिलिटी क्या करती है, जबकि हमारे डिस्क में कोई चीज़ जो होती है डुप्लीकेट चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, या डुप्लीकेसी बना देता है, और फिर बाद में अगर वो यूज़ नहीं होती है या वो डेटा डैमेज हो जाता है, डेटा लॉस हो जाता है, तो वो उसे क्या करता है, रिट्राइव करता है, वापस से उसको लेकर आ जाता है। तो ये यूटिलिटी का काम होता है। उसके बाद कंप्रेशन यूटिलिटी। तो कंप्रेशन यूटिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं हम क्या करते हैं, फाइल को जो करते हैं जो लार्ज फाइल्स होती है, बड़ी फाइल्स होती है, बहुत सारा स्पेस लेती हैं, उसको क्या कर देता है, बहुत ही छोटे फॉर्मेट में उसको कम स्पेस में उसको कंबाइन कर देता है, और उससे हम क्या करते हैं, बाद में यूज़ कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम के लिए। और डिस्क फ्रेगमेंटेशन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो मिनिमाइज़ करते हैं हमारा जो डिस्क में जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं यूटिलिटीज़ को, और इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारा जो लार्ज हो जाता है कंप्यूटर का स्टोरेज, तो लोकेशन जो डिस्क जो होती है वो हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, अलग अलग स्टोरेज में डिस्क में कर देते हैं, B, C, D इसमें डाल सकते हैं, और फिर बाद में हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं किसके थ्रू, डिस्क फ्रेगमेंटेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं,
तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे जो वायरस होते हैं वायरस से हमें बचाते हैं। ये कंप्यूटर वायरस जो प्रोग्राम होते हैं इंजेक्ट अदर कंप्यूटर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम सच एज वे इंक्लूड इन द कॉपी इटसेल्फ। जब हम कुछ चीज़ कॉपी करते हैं किसी कंप्यूटर से तो उसी के साथ वायरस भी उसी के साथ आ जाते हैं और वो अपनी कॉपीज़ बनाने लगते हैं, कंप्यूटर में ही अबनॉर्मल बिहेवियर दिखाने लगते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैसेजेस में वो दिखते भी नहीं है, मैसेजेस अनवांटेड मैसेजेस की तरह हमारे आ जाते हैं। हमारे जब भी हम म्यूज़िक अनवांटेड म्यूज़िक सुनते हैं, अनवांटेड मैसेजेस खोलते हैं या ग्राफिक डिस्प्ले खोलते हैं या डाउनलोड करते हैं किसी सॉफ्टवेयर को, तो ये जो वायरसेस होते हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं, कंप्यूटर में आ जाते हैं। और इसके लिए हमारे पास कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो हमारी डिस्क को स्कैन करते हैं और वायरसेस को रिमूव करते हैं, तो वैसे सॉफ्टवेयर भी हमारे पास आते हैं। तो वो क्या करते हैं, सारे जो एंटीवायरस होते हैं वो क्या करते हैं, वायरसेस को फाइंड करते हैं, उनको डिलीट करते हैं, उनको बताते हैं कि ये हैं और उन्हें क्या करते हैं, काउंटर अटैक करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्विक हील के एक सॉफ्टवेयर के बारे में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में बता रखा है। तो ये किस तरीके से सिस्टम इज सिक्योर, वो आपका क्या करते हैं, वायरस को डिटेक्ट करता है, उसके बाद बताता है कौन कौन से वायरसेस इसमें हैं और फिर बाद में वो उनको डिलीट कर देता है। इस तरीके से आपका कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है, सेफ रहता है किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से। फिर बात करते हैं हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। This is type of a software that is tailor-made software according to the user requirement. This type of software is developed to meet all the requirements specified by the user. For instance, a company wants to computerize its account department to get the software developed according to its needs. Such as software is customized software. It customized according to the user need. However, such software cannot be directly installed at any other user workplace as the requirement of the second user or may differ from the first and software and may not fit considered for the requirement of the new user. Customized softwares क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कस्टमाइज होते हैं, मतलब टेलर मेड होते हैं। मतलब जैसे कि कपड़े होते हैं, कपड़े क्या होते हैं, हर एक बंदे की अपनी अलग फिटिंग होती है, हर एक बंदा अपने लिए अलग तरीके से यूज़ करता है, कपड़े अलग तरीके से फिट करवाता है या जो कुछ भी होता है वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करता है। वैसे ही कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हर एक जो कॉरपोरेशन होते हैं या जो होते हैं वो अलग अलग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर घोषित होते हैं अपने प्रेफरेंस के लिए कि उनके पास कितना बड़ा स्पेस है, उनके पास कितनी डेटा का रिक्वायरमेंट है, तो वो इस तरीके से टेलर्ड मेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो कि स्पेसिफिक नीड्स के लिए यूज़ होते हैं। सो इससे ये करके हमारा जो है चैप्टर पूरा हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर ये देख लेना, मैंने इसमें कर दिए हैं, यहाँ पर अवेलेबल होंगे और आप इंटेलिजेंट हैं और मुझे पता है कि आप इसे कर भी सकते हैं, तो अपने आप भी इसका थोड़ा सा देखें आंसर और इसको फेयर आउट करें अपनी कॉपी में। ओके, सो इसकी मैं अलग से फ़ोटो भी शेयर कर दूंगा आपको, बट आप ये अपने फेयर आउट कर दीजिए और मेरे को दिखा देना है। ओके।